Hello everyone, I am Shivani and welcome to my YouTube channel Civil Series. Our today's lesson start with the resultant force. Consider this is a body on which we apply a number of forces which produces the same effect as this single force applied on this body. The effect of this single force is same as the effect of these forces. It is the single force which produces the same effect as all other forces produces together without any changing effect. मतलब इस बॉडी पर अगर हम ये 5 फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं और इन 5 फोर्सेस की वजह से इस बॉडी में जो कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, जो कोई भी इस बॉडी पर इफेक्ट हो रहा है, वो सेम इफेक्ट इस सिंगल फोर्स से भी इस बॉडी पर हो रहा है। और इस 5 फोर्सेस को रिप्लेस करके हमने एक सिंगल फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया है, उस फोर्स को हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस रिजल्टेंट फोर्स डिस्टर्ब्स दिस बॉडी एंड ऑल्सो अनबैलेंस दिस सिस्टम। Then equilibrant force. Consider a block on which we apply a resultant force, and because of resultant force this body get disturbed or unbalance that system, और उस अनबैलेंस सिस्टम को स्टेबल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम एक इक्विलिब्रियंट फोर्स उस पर अप्लाई करते हैं। वो सेम होता है एज द रिजल्टेंट फोर्स बट ओनली इन अपोजिट डायरेक्शन। Okay, so this is the resultant force and this is the equilibrant force, same in magnitude but opposite in direction. Equilibrant force is that force which cancels the effect of resultant force, and also that force make the system stable, and the value of equilibrant force will be same as the resultant force but only the directions are different. And with the help of equilibrant force, we eliminate the effect of this resultant force and this condition is called as the equilibrium. Okay, any system of force which keeps the body at rest is said to be in equilibrium. If we eliminate the effect of resultant force with the help of this equilibrant force, this condition is called as the equilibrium. Resolution of force means breaking of force into its component. Consider a force which is in angle with horizontal, and for finding out the magnitude of that force we have to divide that force into its component, and we will divide that force into its component by the two methods. First is the orthogonal component and second by the non-orthogonal component. Orthogonal component is the breaking of force into its mutually perpendicular component. This is an x and y axis, and on this x and y axis, 4 forces applied in every axis. Okay, this is a force F1, F2, F3 and F4, and these are the forces which are in some angle with the horizontal. And for finding out the magnitude of this force, we have to divide this force into its perpendicular component. This is the perpendicular component of this F1 force, and this is the perpendicular component of F2 force. We have to divide the force into its component for finding out the magnitude. And in the non-orthogonal component, the resolution of forces in such a way that its component make an angle less than 90 degree or greater than 90 degree, and in the orthogonal component the components are perpendicular to each other, but in non-orthogonal components the components are less than 90 degree or greater than 90 degree. For solving the numericals of orthogonal resolution, we have to draw a parallelogram and solve these numericals with the help of the sine rule. ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और इन एक्सिस पर ये 4 फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, F1, F2, F3 एंड F4. सो F1 को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट. सो द F1 इज द रिजल्टेंट फोर्स. ओके, सो F1 को कंसिडर करते हैं रिजल्टेंट फोर्स. सो F1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, x डायरेक्शन में F1x
एंड F1 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, y डायरेक्शन में F1y। सेम इस यहाँ पे भी, सो यहाँ पे F2 फोर्स है, सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज F2x एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज F2y। मान लीजिए ये भी एक फोर्स है, इस x एक्सिस पर हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, R फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। अगर कोई फोर्स एक्सिस पर ही होगा तो अगर एक फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो x एक्सिस पर है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, जो इस फोर्स की वैल्यू है, दैट इज r। अगर कोई फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं इस y डायरेक्शन में, सो इसका फोर्स क्या होगा, r, ओके, रिजल्टेंट फोर्स। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, 0, क्योंकि ये y एक्सिस पे है। सो Fy इज इक्वल्स टू r, मीन्स वर्टिकल कंपोनेंट r इज इक्वल्स टू Fy, ओके। और अगर कोई फोर्स और कोई रिजल्टेंट की वैल्यू 0 हो तो हम मानेंगे कि वो फोर्स इन इक्विलिब्रियम है, क्योंकि वहां पे Fx और Fy, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स, दोनों भी 0 है। कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, इट इज द एडिशन ऑफ फोर्स टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट। हमने रिजोल्यूशन में क्या देखा था कि एक सिंगल फोर्स है, एक सिंगल रिजल्टेंट फोर्स है, तो उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हमने उस फोर्स को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया है और फिर उसकी वैल्यू निकाली है उन दोनों कंपोनेंट्स से। और कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस में हम क्या करते हैं, दो कंपोनेंट्स को एक सिंगल फोर्स में कन्वर्ट करके फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं और उसे हम कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस हम दो फोर्स सिस्टम के लिए देखेंगे। फर्स्ट इज द कोलिनियर फोर्स सिस्टम एंड सेकंड इज द कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। कोलिनियर फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनमें सभी फोर्सेस एक सिंगल और सेम लाइन ऑफ एक्शन में आते हैं, और कॉन्करेंट फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनमें सभी फोर्सेस एक पॉइंट पे आके मीट होते हैं। That is, the force whose line of action lie on the same line are known as collinear force system, and the forces which meet at a one point are known as the concurrent force system. अब concurrent forces से, अब collinear forces से हम रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं? So this is a force in positive x direction, this is second force in positive x direction, and this is third force in negative x direction, and the resultant of these three forces is this force in positive x direction, and these are the values, these are the magnitude of these forces. 10 Newton plus 10 plus 40 minus 30 equals to 20. ये 10 किलो न्यूटन फोर्स इन एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में है, 40 किलो न्यूटन भी एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में है, बस ये 30 न्यूटन फोर्स एक्स नेगेटिव डायरेक्शन में है। सो 10 प्लस 40, इस 50 से हम ये 30 माइनस करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, तो 10 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 50 माइनस 30 इक्वल्स टू 20। सो हमें रिजल्टेंट यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है। तो हम कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम से हम बाय पैरेललोग्राम लॉ एंड बाय ट्रायंगल लॉ हम ये रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं, बट फॉर ओनली टू कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। पैरेललोग्राम लॉ, if the forces acting on a body at a point are representing in magnitude and direction by the two adjacent sides of parallelogram, then their resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal of parallelogram, which passes through the point of intersection of the two sides representing forces. तो कंसीडर कीजिए ये पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम की ये साइड और ये साइड, ये दोनों फोर्सेस है, और इन दोनों फोर्सेस का एक मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन भी है, और इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है। और पैरेललोग्राम लॉ में हम इन दोनों फोर्सेस का यूज करके इसकी रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक पैरेललोग्राम है और इसकी एक साइड पर हम P फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और एक साइड पे Q फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। पैरेललोग्राम ABCD, ओके। सो दिस इज एन एंगल बिटवीन लाइन
AD and line AB. This is the resultant, that is the diagonal of this parallelogram. और ये अल्फा एंगल है, वो रिजल्टेंट और P फोर्स के बीच में है. उन दोनों के बीच का एंगल है अल्फा. और यहाँ पे हमने AB साइड, दैट इज फोर्स P की जो साइड है उसको एक्सटेंड किया है. और फ्रॉम पॉइंट C हमने एक परपेंडिकुलर डाला है, क्योंकि हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है. और द वर्टिकल साइड, this vertical side is the q sin theta. This is the vertical component and the horizontal component is q cos theta. और AD एंड BC ये दोनों पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है. तो एंगल बिटवीन AD एंड AB इज इक्वल्स टू द एंगल बिटवीन CB एंड CE. सो हम यहाँ B के आगे यहाँ पे E पॉइंट कंसिडर करते हैं. ओके, यहाँ पे E लिख देती हूँ मैं. सो दिस इज द E पॉइंट. ओके, दिस इज थीटा. और इससे हम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या होता है? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस ऑफ थीटा. और ये मैग्नीट्यूड हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमने ये मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया है. पाइथागोरस थ्योरम हम A, B एंड E इस ट्रायंगल में यूज करेंगे. तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए हम दो साइड्स की स्क्वायर की एडिशन इज इक्वल्स टू जो साइड, जिस साइड का हमें रिजल्टेंट निकालना है, जो हमारा रिजल्टेंट है उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू इस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू इस साइड का स्क्वायर और इस साइड का स्क्वायर. सो हम क्या करेंगे, पहले ये साइड मीन्स P प्लस क्यू कॉस स्क्वायर. सो इसको ब्रैकेट स्क्वायर में लेंगे P प्लस क्यू कॉस स्क्वायर, क्योंकि एक A टू E ये पूरी लाइन है. सो इसका मैग्नीट्यूड ये है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है, इसका मैग्नीट्यूड है Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू R स्क्वायर. तो हम R स्क्वायर को जब R में कन्वर्ट करेंगे और ये दोनों स्क्वायर को हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये फॉर्मूला मिलता है अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस ऑफ थीटा. इसकी मदद से हम रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर कॉस की वैल्यू 0 होगी तो कॉस 0 आता है 1. ओके, सो यहाँ पे अंडर रूट में क्या बचता है? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ. तो ये किसका फॉर्मूला है? P प्लस Q ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ. क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू 0 है, क्योंकि हमने थीटा 0 कंसिडर, कॉस थीटा की वैल्यू 1 है क्योंकि हमने यहाँ पे थीटा 0 कंसिडर किया था. सो ब्रैकेट में P प्लस Q ब्रैकेट स्क्वायर आता है. ओके, सो वो स्क्वायर रूट और वो स्क्वायर कैंसिल होके हमें रिजल्टेंट की वैल्यू मिलती है P प्लस Q. So this is the direction of resultant tan phi. Tan phi means this angle tan phi. So tan phi हम कैसे निकालते हैं? tan phi में हम अपोजिट डायरेक्शन अपॉन एडजेसेंट डायरेक्शन मीन्स tan का फॉर्मूला होता है कि अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड. सो अपोजिट साइड क्या है इस ट्रायंगल की? ACE साइड की अपोजिट साइड है Q मीन्स यहाँ पे अल्फा एंगल है. सो इसकी अपोजिट साइड है Q साइन थीटा अपॉन ये पूरी साइड क्या है? P प्लस Q कॉस थीटा. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट tan अल्फा इज इक्वल्स टू Q साइन थीटा प्लस P प्लस Q कॉस ऑफ थीटा. Triangle law is also called as a sine law. So these are the two sides of the triangle and this is the resultant. This is a triangle A, B and C and this is force P and this is Q and this is the resultant. And this is the angle between the resultant and the P force is alpha. Angle between the P force and Q force is beta and angle between the resultant and Q is the gamma. मैग्नीट्यूड हम जैसे पैरेललोग्राम में फाइंड आउट किया था वैसे ही यहाँ पे भी फाइंड आउट करेंगे with the same formula, but triangle law is the sine law and the parallelogram law is the cosine law.
ट्रायंगल लॉ में हम साइन का यूज करके डायरेक्शंस फाइंड आउट करते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे बीटा एंगल है तो इसका अपोजिट क्या है, रिजल्टेंट आर। तो हम कैसे लिखेंगे, आर अपॉन साइन बीटा, बिकॉज ट्रायंगल लॉ इज द साइन लॉ। ओके, सो यहाँ पे अल्फा एंगल है तो अल्फा एंगल के अपोजिट में है क्यू, सो कैसे लिखेंगे हम, क्यू अपॉन साइन अल्फा। और पी के अपोजिट में क्या है, यहाँ पे जो पी है इसके अपोजिट में क्या है, गैमा एंगल, मीन्स गैमा एंगल के अपोजिट में पी फोर्स है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे पी अपॉन साइन गैमा। अगर आपको एग्जाम्पल में इनमें से कोई भी वैल्यू, अगर बीटा का एंगल दिया हो, क्यू दिया हो और अल्फा दिया हो, तो आप आर निकाल सकते हो, दैट इज दिस रिजल्टेंट आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो जैसे आपको इन सभी की वैल्यूज पता होगी, अगर क्यू पता होगा, अल्फा पता होगा और गैमा पता होगा, तो आप पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। So it states that if the two forces acting simultaneously on the particle be represented in magnitude and direction by the two sides of triangle taken in order, their resultant may be represented in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order. So ये दोनों के opposite order में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो की हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।